Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. In this particular session, I am explaining to you the solutions of each and every question of the exercise 2.3 part of the relations and function chapter of your grade 11 mathematics. तो शुरुआत करते हैं with the very first question. Which of the following relations are functions? Give the reasons. If it is a function, determine its domain and range. तो हमें तीन सब क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका पहला क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है बिकॉज रिलेशन जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. सिंपली रोस्टर फॉर्म को हमें समझना है, वो रिलेशन को समझना है, वो फंक्शन है कि नहीं. इफ इट इज ए फंक्शन, write the domain and range. If it is not a function, we have to give the reasons. If it is also a function, we have to give the reason. Both the time we have to give the reason. So understand. First of all, observe the relation between the element, the first component and the second component of the given relation set. Here we can see that 2 goes to 1, 5 also goes to 1, right? 8 is also going to 1, 11 is also going to 1, 14 is going to 1, 17 is going to 1. So all these elements are related to only one element, that is 1. In other words, I can easily see here that for every input I am getting unique output. For every input that we are giving, for every input there is unique output. So which is the definition of what the function. When you have input given and you are getting unique output for every input, then yes, you would say that the given relation is a function. So for every input there is a unique output, therefore I would say that the relation is function. This relation is a function. Simply we can write it down like this. This relation is function. Clear hai? Now we have to talk about what the domain and range of it. What would be the domain of the relation? That would be the same as the domain of the function now, because the whole relation set is resembling with the function. So domain of this particular relation, you can see it's a set of first component, right? Set of first components. So let us write down that it's a set containing these elements 2, 5, 8, 11, 14 and 17, है ना. और जो range रहेगा, range would be the set of the second element. Second elements all are same, it's 1 only. Okay, so we are done with the answer of first question. Second sub questions देखते हैं. यहाँ पे देखो 2 is related to 1, 4 is related to 2, 6 is related to 3, 8 is related to 4 and 10 is related to 5, 12 is related to 6, 14 is related to 7. What did you notice? You notice that for every unique input there is a unique output. यहाँ पे input भी unique है और output भी unique है. बट फंक्शन होने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नेसेसरी है कि आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक. वो बात तो सेटिस्फाई है. बट यहाँ पे एक बात हम देख पा रहे कि इनपुट भी यूनिक है, दैट इज फाइन. इसको हम कौन से टाइप का रिलेशन बोलते हैं? अगर देखा जाए तो वन एलिमेंट रिलेट्स वन एलिमेंट, वो भी यूनिक वे में, राइट. तो ये सिंपल यहाँ पे हम रीजन में बताएंगे कि एवरी इनपुट देयर इज यूनिक आउटपुट, देयर इज यूनिक आउटपुट. तो रीजन तो सेम रहेगा क्योंकि वही तो है जो डिफाइन करता है फंक्शन को, है ना. एवरी इनपुट देयर इज यूनिक आउटपुट, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन, इज ऑल्सो फंक्शन. नाउ डोमेन एंड रेंज यहाँ पे इजी हो जाएगा बताना, वो भी क्लियरली. हमेशा डेफिनेशन आपको पता है, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट फ्रॉम द रिलेशन सेट. तो डोमेन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, डोमेन फॉर द रिलेशन आर विच इज द सेम एज द डोमेन फॉर द फंक्शन दैट इट हैज बिकम, राइट. सो इट्स 2, 4, वी कैन से 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड 14 है, राइट. एंड व्हाट इज द रेंज? Range would be the set of second component. Second components है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That's it. Done. Next question है हमारा number 3 from the same first question. Set with these 3 elements we have 1 goes to 3, 1 goes to 5, 2 goes to 5. So what did we notice? We noticed that there are there is the element 1 which has two outputs, which is not possible in case of function.
function is a machine which for every input gives unique output, but here this input is giving two output. So this is the reason that we can mention here that since element 1 has two outputs, namely what, 3 and 5, we can mention that, right? Element 1 has two outputs, 3 and 5, therefore 1 has no unique output which contradict the definition of function. Hence we say that what the given relation is not a function. Therefore this relation set does not define a function set. This relation is not a function, है ना, क्लियर? सो यहाँ पे अभी डोमेन और रेंज की बात तो नहीं आती हमें. इफ इट इज अ फंक्शन देन दे आस्क्ड अस डोमेन एंड रेंज. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 हमारा, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन योर रिटन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NDA and IIT JEE ask such questions in them, that find the domain and range of the following real functions. Notice the function. We have got f of x is equals to minus of mod x. You students should know about this mod x function. What it is? It is absolute value function. You know it will be positive x when x is greater than 0. It will be negative x when x is less than 0. And it will be simply 0 when x is 0. Basically what happens, this modulus function value would be always positive, because when you are giving x positive, it's of course positive, but when you are giving the negative, it is becoming negative of the value negative. What it become again positive. That's why we know that this is modulus x is always positive. This is always positive. Now what is happening in the function, we have minus of this modulus. So exactly what we have, in other words, if I write, if I have negative into positive, did you get it? Minus of mod x is always positive valued function, है ना? mod x तो इसमें पॉजिटिव है, बट यहाँ पे निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा ना. रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर वुड बी निगेटिव. सो वी नोटिस दैट ये जो डोमेन जो रहेगा अभी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f, ओके, क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से रहेगा, क्योंकि इसको हम कुछ भी रियल नंबर दे सकते हैं, उसके लिए वो डिफाइन है फंक्शन, है ना. दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ओनली. सो आर आई एम राइटिंग. एंड रेंज क्या रहेगा, ये क्या वैल्यू ले पा रहा है वो होता है उसका रेंज. फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, फंक्शन इज ओनली टेकिंग विच काइंड ऑफ वैल्यूज ना, ओनली इट कैन गिव द रिजल्ट. एफ एक्स का वैल्यू निगेटिव ही रहेगा. यू गिव एनी रियल एक्स, राइट, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ रियल निगेटिव नंबर्स. कैसे लिखेंगे उसको, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल निगेटिव रियल नंबर्स. ये 0 ले सकता है क्या, एक्स वेन 0, फंक्शन 0 ले सकता है, तो हमें 0 पे क्लोज करना चाहिए. ये निगेटिव लेगा, सही बात है, बट 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नॉट अ निगेटिव. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x 0 देंगे तो ये तो एफ एक्स 0 होगा, मतलब फंक्शन 0 भी ले रहा है, तो ये सेमी ओपन इंटरवल हो गया, है ना. माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज एट 0. क्लियर है. नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो ये फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज. लेट मी रिकॉल हियर द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन. डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. ओके, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे फंक्शन का नेचर कैसे, इट्स अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये फंक्शन कौन सा है, रियल फंक्शन है, तो ये रियल वैल्यू लेना चाहिए. बट आपको पता है अंडर रूट में अगर निगेटिव आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज अलाउड नहीं है यहाँ पे. तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या कंडीशन रखनी होगी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये कंडीशन हमें रखनी होगी ताकि ये फंक्शन डिफाइन हो, तब जाके हम उसका डोमेन सेट कर पाएंगे, है ना. तो वी हैव टू हियर पुट द कंडीशन दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली. तो ये एक्चुअली क्या बोल रहा है फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी चेंज होती है ना. अभी एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0. और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप नंबर लाइन ले सकते हो, उस पर 2 रूट्स ले लो. एक्स माइनस 3 को सॉल्व करो, पॉजिटिव 3 देगा, है ना, और एक्स प्लस 3 को सॉल्व करो, निगेटिव 3 देगा. तो ये है पॉइंट्स. हमें चेक करना है ये कौन से सेट ऑफ वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा. लेस देन चाहिए. देखो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे -3 और 3 के अंदर के वैल्यू देती हूँ, 0 दे देती हूँ, 0 -3
0 + 3 ये क्लियरली सेटिस्फाई होता है, मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है क्लियरली सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को। और ये कौन सा रीजन है, ये है वैल्यू सेट फ्रॉम -3 to 3। तो मैं यहाँ पे हेंस लिख दूंगी, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वी राइट दैट -3 < x < 3। तो ये हो जाएगा डोमेन, बट उसको हमें प्रॉपरली इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहिए, तो इसको लिखेंगे क्लोज इंटरवल -3 to 3, है ना। ये हो गया डोमेन सेट। हमें क्या पता करनी है अभी, रेंज। अभी रेंज देखो आप, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। आप डोमेन मतलब ये वैल्यूज फंक्शन को दे रहे, इनपुट सब इसमें से आ रहे, आप इसमें से कोई भी इनपुट दो, राइट। एक्स को 0 दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर -1 -2 -3 देती हूँ तो भी वो सेम वैल्यू लेगा एज 1 2 3 दूंगी पॉजिटिव टू दी एक्स। मतलब ये सिंपली वैल्यू क्या लेगा, मैक्सिमम इसका वैल्यू रहेगा 9, क्योंकि व्हेन x = 0 रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जिसका वैल्यू होता है 3, आपको पता है। तो हेंस हम यहाँ पे रेंज डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं कि ये 0 लेगा वैल्यू x = 0 पे, बट अबाउ 0 पे और बिलो 0 टिल -3 बिलो, एंड अबाउ 0 टिल 3 ये वैल्यू क्या लेगा, रूट ऑफ 9 जो कि 3 है। तो ये हो जाएगा रेंज। You know what is a range? Range is all about the set of values from minimum to maximum that function can take. Minimum to maximum, है ना, minimum to maximum, ये ध्यान रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। A function f is defined by f of x is equals to 2x minus 5. Write down the values of this. फर्स्ट क्या है हमारा, f of 0 कैलकुलेट करना है। क्या करना होगा आपको, रिप्लेस दिस x with this value 0 to find the functional value of the given function at x = 0. So हम फाइंड करेंगे f at x = 0। फाइंड करो 2 × 0 - 5 क्या देगा, -5। क्या है सेकेंड इज f of 7। ये भी कैसे करेंगे हम, f at x = 7 को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 × 7 - 5 क्या देगा, 2 7 14 - 5 9। देन थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है f of -3, दैट इज f at x is equals to -3। दिस विल गिव 2 × -3 - 5 क्या होगा, -6 - 5 -11। दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by this relationship। फंक्शन डिफाइन करके हमें दिया गया t at c is equals to 9c/5 + 32, और बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यूज t of 0, t of 28, t of -10 and the value of c when t of c is 212। आसान है ये क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। यू शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द इंडिकेटेड वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, c। ओके, तो हमें अभी दिया गया c का वैल्यू 0, तो पहला मैं कैलकुलेट कर रही हूँ t at 0 को फाइंड कर रही हूँ, 9 × 0/5 + 32, ये तो 32 ही होगा, है ना, 0 + 32 32 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, t at 28, तो ये हो जाएगा 9 at 28/5 + 32। ये तो आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ पे 9 × 28 करना, डिवाइड बाई 5 करना, तो यहाँ पे हम पहले डिवाइड बाई 5 भी कर सकते हैं, है ना। डिवाइड बाई 5 कर लेते, 5 5 = 25, देन 0.56 = 30, तो 5.6 × 9 कितना होगा, 32 + 9 6 = 54 होता है, 9 5 = 45 + 5 50.4 होगा, तो टोटल एडिशन हो जाएगा 82.4। चेक, है ना, सेकेंड हो गया। फिर हमारा है अभी थर्ड पार्ट, इसमें t at -10 कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × -10/5 + 32, तो 5 1 5 2 से जाएगा, 9 × -2 हो गया -18 + 32, निकालो ये कितना आएगा, ये आएगा 14, पॉजिटिव 14, है ना। ये हो गया थर्ड। और अभी फोर्थ कैसे निकालना है, हमें लेना है t of c की वैल्यू। ये जो वैल्यू है ना, t of c को 212 रखना है। 212 इज इक्वल्स टू 9c/5 + 32। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको, लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल c। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो सबसे पहले क्या होगा, 212 के पास 32 को भेज देते हैं, है ना। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 9c/5। ये डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, ये डिफरेंस हमें आ रहा है 180, है ना।
So this is equals to 9c by 5, 91920, 20 into 5 कर लो, c is equals to 100. Okay, so let's look into the next question now, number 5. Find the range of each of the following functions. जहाँ पे पहला function है हमारा 2 minus 3x where x belongs to set of real numbers and x is greater than 0. तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि ये जो फंक्शन है f of x, ये जो इनपुट ले रहा है ये पॉजिटिव इनपुट ले रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर. तो हमें रेंज पता करनी है. तो रेंज डिटरमाइन करने के तरीके होते हैं. एक तो तरीका जैसे कि मैंने पढ़ाया, like I told you, you can find the minimum to maximum value that function can take, and with that you can determine the interval of minimum to maximum as the range of the given function. बट अनदर अप्रोच में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कि ये गिवन ऐसा अगर फंक्शन है तो इसको आप लेट y कर सकते हो. And what you can do is you can write this as now 2 minus y is equals to 3x and x is equals to 2 minus y by 3. ओके, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो. अभी हमें क्या पता करना, रेंज. रेंज क्या होता है? इन अदर वर्ड आई कैन डिफाइन दिस एज सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज. अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज है. अभी यहाँ पे हमारा आउटपुट कौन है? y है ना. y हमारा आउटपुट है क्योंकि इनपुट क्या है? x. तो हमें यहाँ पे क्या सोचना है? y के वैल्यूज हम क्या दे सकते हैं वो सोचना है. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x क्या है? ग्रेटर देन 0 है. तो ये कंडीशन जो है ना, ये बंदा सेटिस्फाई करना चाहिए, ये एक्सप्रेशन. तो y को हम 0 दे सकते हैं क्या? y को हम 0 दे सकते हैं क्योंकि 2 माइनस 0 क्या होगा? 2/3 होगा. लेस देन वन नंबर है वो, है ना. y को हम 1 दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं. y को 2 दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं. y को 3 दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते. अगर y को हम 3 देने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं कंडीशन डालना पड़ेगी, y जो है हमें ये लेस देन 2 ही देना होगा, तब जाके ये जो बंदा है x ग्रेटर देन 0 ये सेटिस्फाई करेगा खुद को, है ना. देयरफॉर y का हमने रेंज डिटरमाइन किया, मतलब y का हमने वैल्यू से डिटरमाइन किया जो कि रेंज हो गया गिवन फंक्शन के लिए. देयरफॉर रेंज में अभी लिखूंगी, रेंज क्या हो गया? इट्स द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2. कैन वी गिव 2 टू इट? इट विल बिकम 0 बिकॉज 0 अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने ओपन रखा है एट 2. वी कैन गिव वैल्यूज लेस देन 2. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. नाउ यहाँ पे वो बोला है x इज रियल नंबर. रियल नंबर बोला है, 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. बट हमें पता है अगर x रियल नंबर है, कुछ भी हो, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव ही रहेगा. इफ x इज इधर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, x या पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक पॉजिटिव नंबर है. अगर ये देखा जाए तो एक पूरा एक पॉजिटिव नंबर है ना. ये जो फंक्शन है इसका अगर मैं बोलूँ, मुझे मिनिमम वैल्यू अगर बोलना है तो ये मैं 0 रख के मिनिमम बता सकती हूँ. तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स हम इजीली बता सकते हैं 0 प्लस 2 करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव अमाउंट है. अगर एक्स में मोर देन 0 देती हूँ या तो लेस देन 0 देती हूँ, निगेटिव देती हूँ या पॉजिटिव देती हूँ, ये अमाउंट तो ऐड होते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा. किससे? 2 से बढ़ते ही जाएगा. मतलब इसका मैक्सिमम जो होगा हम लोग वी कैन डिटरमाइन इट कैन बी ग्रेटर देन 2, कुछ भी हो सकता है ना. मैक्सिमम ग्रेटर देन 2 कुछ भी हो सकता है. देयरफॉर इसका रेंज क्या लिखूंगी मैं? ये मिनिमम 2 लेगा बट ग्रेटर देन 2 ले सकते हैं, तो वो टिल इन्फिनिटी तक भी जाएगा. एक्स को हम कुछ भी दे सकते हैं ना. दैट इज हाउ द रेंज इज क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी. या तो इन्फिनिटी को हम क्लोज करो ना करो अपने पे है. इन्फिनिटी है वो नॉट डिफाइंड नंबर है तो उसको ओपन ही रखते हैं हम प्रिफरेबली. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर. बहुत अच्छा क्वेश्चन. हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स दिया है. सिंपल. ये फंक्शन क्या है? एक टाइप ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ही है ना ये, है ना. अब एक्स को रियल नंबर इनपुट दो, आउटपुट भी क्या देगा? वही नंबर आ रहा है, वही इनपुट है, वही आउटपुट बाहर आ रहा है. आउटपुट इज ऑल्सो द सेम एक्स बिलोंग टू आर. तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया? रेंज इज द सेम सेट ऑफ रियल नंबर्स ओनली. कुछ चेंज ही नहीं ना. फंक्शन जो इनपुट दे रहा है वही बाहर आउटपुट आ रहा है, राइट. द डेफिनेशन इज द आइडेंटिटी डेफिनेशन फॉर द फंक्शन. क्लियर है. सो होपफुली आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो. प्लीज स्टे ट्यून टू मैथ्स एंड मैथ्स ट्रिक. Next, I would be coming up with the questions of miscellaneous exercise which will be really helpful to understand and solve
the questions of various competitive exams based upon the topic of relations and functions. And do like and share the videos with the needy one with your friends who are in need of the content, and do subscribe to the channel Maths and Matrix so that you can get the notification whenever the new uploads come for your related content.